हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स के बेस। आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट द बेस ऑन एज यू कैन नो हीट एंड the today's numericals are based on heat and power. So the today's numerical based on, as all of you know, so we'll start from the first numerical, that is a 6 meter. You just write down with me. I'm just repeating as well as writing down. A 6 meter long wire is made of from an alloy of nichrome, is shaped into a coil. Is shaped into a coil and given for producing heat. Given for producing heat. It has a resistance of 24 ohm. Can we get more heat? Can we get more heat if the wire is cut into half? If the wire is cut into half. Cut into half of its original length. Of its original length and shape into a coil. And shape into a coil when wire is connected to 220 volt. When wire is connected to 220 volt. Now what we have to calculate here, students, we have to calculate that is how much amount of heat will be generated, and if it is possible that we'll get that much amount of heat as in the same time whenever the heat is generated while the wire is cut into half. First of all, what they have to take in, first of all what you have to do, you have to take one wire, the alloy wire which is made by nichrome, having a length of 6 meter, which means wire is exactly look like this, 6 meter long, the ends are 6 meter. You have to turn into a coil. Afterwards what you have to do, you have to cut the wire into half, that is 3 meter, and again shaped into a coil which is exactly half. Now you are here, you have to find out in which case you will get the more heat. In case first you will get more heat, or in case second you will get more heat. As we know, first of all what we have to do, whenever the numerical is given at that time, first of all we have to write down given data. Whatever is given, that we have to write down first. Now what I am going to do this, I am just going to write down the numerical. In that numerical whatever the quantities are given, that quantities I am going to writing down over here, which means a given data. What was given? A long meter. Meter is nothing but the unit of length. So that's what we have taken here, length. L1. L1 is equal to 6 meter. Next, in that same condition, why so I have taken it as a L1? Because of it says that the original length cut into half, which means here we are having two lengths. That's what L1, L2, and L2 is nothing but the half. The half of the 6 is 3 meter. Okay. Next. Now here what we have to take here, that is potential difference. The potential difference for the full length wire is, that is V1 is equal to 24 ohm,
Approximately same for V2. V2 is nothing but the half of this, because length is half, which means resistance also half. Potential difference not equal to half, but resistance, sorry, here R1, R1 is equal to 24 and R2 is equal to 12. Okay, R1 is equal to 24 ohm and R2 is equal to 12 ohm. Now again, potential difference, we know very well, whatever the length, potential difference does not dependent on the length. So that's what V is equal to 220 volt. That is, as we are having. Here come our given data. Given data is finished over here. Next, whenever the given data is completed, afterwards what you have to write down? You have to write down the formula. But here we have to calculate two different quantities. That's what I have taken two different formulas. For first one, that is for part 1, when coil is up to 6 meter long, for that I have taken power is equal to V square divided by R, where it is P1, and for part second, that is P2 is equal to V square divided by R2. Here come my formula. Now what I am going to do this, in that I am going to place the values only, because power is nothing but the heat into time. Whatever the power is greater, at that time heat also greater. Next, for P1 is equal to 220 square divided by R1 is equal to 24, which is approximately equals to, when you take the value, so you will get the answer over here, that is 201. Okay, you just do the calculation. For what you have to do this calculation, you have to multiply 220 into 220 divided by 24. Okay, next what you have to do, you have to just reduce this by, while doing this, you can reduce this by number, that is you can just cut this by 2, number of digit of 2, you will get the answer, that is 201 watt. 201 watt. For second coil, for P2 is equal to again 220 divided by 24, here square, that is 220, sorry, here come 12, because it is cut into half. 220 into 220 divided by 12, you just do calculation, you will get the answer. When you do this, so you will get the answer 403 watt. Okay, so when the full length wire is there, at that time 201 watt power is generated, and when it is cutted into half, that is 12 ohm, it comes into, that is 403, which means whose generate more heat, that is the heat. This means that more the heat will be obtained after cutting the wire into half. Okay, because when you cut the wire into half, length decreases but the potential difference cannot be decreases. That's what you will get the more heat when you cut into the half. Okay, now I am going to erase this. If you have a doubt about regarding to this numerical, you can ask me in the comment box, which is given below. Next, second numerical. A coil is connected to 9 ohm resistance. Second numerical, a coil is connected to a 9 ohm resistor, because of which heat of the heat of 400 joule is produced per second due to current flow through it. Obtain the potential difference applied across the resistor. Across the resistor.
In that same here again, first of all, what we have to do? Just tell me the students first. What I have to exactly do first? Given data. I'm going to write down given first. What is given? A coil is connected to 9 ohm, which means resistor in given, that is 9 ohm. Afterwards, because of which heat is 400 joule, which means H is given, H is equal to 400 joule. Is that correct or not? If you have any problem, if you have any doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Second, afterwards, per second. In that we just slightly remove this word. Per second, per second means what? 1 second. So time period is equal to 1 second. यार अपने को क्या लगता है कि हम लोगों को तो टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, बट वो वर्डिक में मेंशन कर जाते हैं पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में. पर सेकंड मींस व्हाट? इन 1 सेकंड. सो 1 सेकंड में कितना हो रहा है, तो उसने ये पूरा क्वांटिटी आपको दे रखा है और आपको क्या निकालो बोल रहा है कि इस पूरे, मतलब ये पूरे सेगमेंट्स में आपको V पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड होता है वो आपको निकालना है रेजिस्टर के अक्रॉस. तो कैसे निकालेंगे? सिंपल थिंग है, अपने पास तो ये होने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला कौन सा है? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. बराबर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. इस पे से हम लोग वी स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास P है क्या? नहीं है. तो P को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू एच बाई टी. P इज इक्वल टू वॉट? एच बाई टी. सो हम लोग इस पे से P निकाल सकते हैं. इस P को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को वी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि वी स्क्वायर होता है. अगर यहाँ पे वी स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा, आर उधर चला जाएगा. मैं ये क्या करता हूँ, कैलकुलेशन के टाइम पे ले लेता हूँ ये, ठीक है. नेक्स्ट, पहले मैं क्या करूंगा, पावर निकाल लेता हूं. तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? हीट डिवाइडेड बाय टाइम. हीट कितना जनरेट हुआ? 400 जूल. देखो बच्चों कितना इजी जा रहा है, बिकॉज ऑफ गिवन डाटा इट विल बी सो इजी. 400 जा ठीक है. सो 400 पावर इज इक्वल टू 400 वैट. ओके, नेक्स्ट, अब आपको इसमें रखना है ये पावर के फॉर्मूला में, जिसपे से आपने को वी निकालना है. सो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये आर मल्टीप्लीकेशन का इधर आएगा तो किसमें बैठेगा? Multiplication goes towards left hand side, so it will be base 3 into a right hand side, which is nothing but the v square is equal to p into r. यहाँ पे इंटू लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली PR लिख सकते हो. PR परमानेंट रेसिडेंसी. क्या करेंगे अब इसका? मुझे बहुत सारे एक बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा कि सर आप फॉर्मूला के ट्रिक बताइए. फॉर्मूला के ट्रिक बताने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ. वोट फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. क्या बच्चों? वोट फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. बराबर, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए क्या करो? वोट करो. वोट फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. वो फॉर V, परमानेंट P, रेसिडेंसी R. V स्क्वायर इज इक्वल टू PR. ओके, नेक्स्ट. इजी है ना? बहुत इजी है. हम लोग ऐसे सारे फॉर्मूला के बनाते चलेंगे, ठीक है. या फिर हम लोग जैसे कि हीट के लिए है, टाइम पीरियड के लिए है, पूरा ऐसे हम लोग फॉर्मूला बनाते चलेंगे, ठीक है. यहाँ पे तो एक ट्रिक हो गया कि वोट फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं. तो V इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वो वाला वैल्यू स्क्वायर रूट में बैठेगा, जो कि रहेगा P इंटू R. बराबर. नेक्स्ट, स्क्वायर रूट में देखिए P कितना है आपका? 400 इंटू R. रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 9 ओहम. रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 9 ओहम. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करता हूं, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इजी भी कर सकता हूं. 400 का अगर स्क्वायर रूट देखते तो वो आता है 20, और अगर 9 का स्क्वायर रूट देखते तो वो आता है 3. तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 बिकम्स 60. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट. हो गया. ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रिक कर सकते हैं. एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी कभी एप्लीकेबल होता है. मैं आपको एक काम करता हूं, मैं इसके साथ ही ना आपको स्क्वायर करने का भी एक ट्रिक बता देता हूं. स्क्वायर करने का ट्रिक बहुत इजी है. देखो फॉर एग्जांपल कोई भी 2 डिजिट का हम लोगों को स्क्वायर करना है, तो 2 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो मैं 2 नंबर ले लेता हूं. सबसे पहले मैं क्या करता हूं? मैं लेता हूं 12, ठीक है. अब 12 का हम लोगों को स्क्वायर निकालना है. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी नंबर लेके आप मेरे साथ करके भी देख सकते हो. 12 का मुझे स्क्वायर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 1 इंटू 2. बराबर. 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा? अगेन इंटू 2 करना है उसको. 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4. बराबर ना. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0 1. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0 4. और ये क्या आया? 4. 4 आपको क्या करना है? एक डिजिट छोड़ के लिख देना है. यहाँ पे करो 4 4 1 144. 12 का स्क्वायर क्या है? 144. और एक लेता हूं मैं. 12 के बाद में हम लोग ले लेते हैं 24.
हम लोग 2 डिजिट ले रहे हैं, इसलिए इसके आने वाले आंसर को भी हम लोग 2 डिजिट में ही लिखेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर बोलिए क्या होता है 4। अब 4 तो नहीं लिख सकते इसलिए 04 लिख देता हूं। 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, लिख दिया। 2 इंटू 4 कितना होता है 2 इंटू 4 8, और 8 इंटू 2 एक बार और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो होता है 16। आपको इसको एक डिजिट छोड़ के लिख देना है 16 को 1 6। देखो 6 7 5 576। 24 का स्क्वायर क्या है 576। आप ऐसी ट्रिक को 99 कहां से लेके 11 10 टू 99 आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आप आंसर इसका मतलब स्क्वायर रूट आप इसका निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट के लिए भी ट्रिक है जो कि मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस है और ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको वो ट्रिक मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताता हूं। अगर आपको जानना है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ना। चलो वोल्टेज कितना आया हमारा 60 वोल्ट। हम लोगों को वोल्टेज कितना मिला है 60 वोल्ट का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। An electrical iron used for power of 1100 watt। मैं न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ देता हूं। आप क्या करिए इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मैं काम करता हूं, मैं अभी वीडियो के बीच में क्या करता हूं मतलब न्यूमेरिकल का सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल के वो जो 4 न्यूमेरिकल्स है उन सबको पहले रख देता हूं, और उसके बाद में लास्ट में मैं क्या करता हूं ये फॉर्मूला जितने भी न्यूमेरिकल्स है मतलब जो भी न्यूमेरिकल आज मैंने लिए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको लिख के वीडियो के लास्ट में वो रख देता हूं। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं और गिवन डाटा लिख रहा हूं ताकि वीडियो छोटा हो जाए, इसलिए तो मैं वीडियो पढ़ना शुरू करता हूं साथ में गिवन डाटा भी लिख देता हूं। एन इलेक्ट्रिकल आयन यूज फॉर पावर ऑफ 1100 वैट, मतलब पावर गिवन है पावर इज इक्वल टू 1100 वैट या फिर 1100 वैट। नेक्स्ट, when set to bright temperature, if the set to lower temperature it use 330 watt power, मतलब this is one P1, this is our P2, that is 330 watt. Okay, next find out the electrical current and the respective of resistance for the two settings. Means you have to, what you have to find out here, you have to find out that is electrical current I is equal to question mark for irrespective setting, means I1 and I2. For that I am going to do this I1 and I2 is equal to question mark. Okay, next when it is connected to potential difference of 220 volt. एक बात बता देता हूँ मैं, हमारे इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब 2 टर्मिनल हमारे घर में हम लोग देखते तो 2 वायर होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिसको हम लोग प्लस माइनस भी बोलते हैं, या फिर 2 वायर्स को हम लोग मतलब एक को लाइव बोलते हैं और एक को न्यूट्रल बोलते हैं। सो हमारे इंडिया में इन 2 वायर के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 वायर इन द इंडिया इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, एंड हम लोग जो साइकिल प्रोड्यूस होती है 220 वोल्ट पे वो होती है 50 हर्ट्ज़। हम लोग 220 वोल्ट को यूज़ करके 50 हर्ट्ज़ जितनी अल्टरनेटिंग साइकिल को प्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में जो है यूएस में इसका हाफ यूज़ होता है, मतलब 120 वोल्ट पे यूएस जो है 60 हर्ट्ज़ जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेती है। दिस इज़ द थिंग व्हाट वी हैव टू नो, हाउ मच टेक्नोलॉजी इज डेवलप इन दैट कंट्री एंड इन आवर कंट्री टू। You have to think about it, why these things were happens. So now for you the basic question is that if you know the answer, please let me in the comment box. I read each and every comment and reply it as soon as possible. Why these things happen? In India we'll get 220 volt for 50 hertz cycle, and in US 120 volt on 60 hertz cycle. That is given on internet. These values are not taken by me. These values are given on internet and I am just going to show you these values are there. Okay, let it be. We are not move for this one. We'll just go for our numerical, that is this one. Now what we have to do, that is next. Here we are having P1, P2, I1, I2 we have to calculate, and second thing is that we have to know what is the value of I1 and I2 with respect to resistance 2, which means R1 and R2. R1, R2 also. R1 and R2 also here is equal to question mark. Okay, first of all given is completed. Now formula. For formula we know very well, that is power is equal to
volt into current. That formula already I have explained you this formula. You must watch my second video, current electricity, heating effect of electric current. In that I'll explain this formula too. मैंने उसमें ये formula explain किया है. इस पे से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको P1 बना देते, ये V1 बन जाता है तो ये I1 बनता है, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं है, P1 है लेकिन V तो वो ये, इसलिए V को V ही रखेंगे. सो I इज इक्वल टू P बाई V बराबर मल्टीप्लीकेशन पुट टूवर्ड दिस साइड इज इन डिविजन. ओके, नेक्स्ट. अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे. ये हो जाएगा I1 का वैल्यू आ जाएगा, इसी हिसाब से I2 भी आ जाएगा. I1 इधर आ जाएगा, I2 इधर क्या आएगा, P2 डिवाइडेड बाय V. ओके, नेक्स्ट. तो P1 कितना दिया है आपको, देखिए 330 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए 330 डिवाइडेड बाय, आपको V1 कितना दिया है, V दिया है 220 वोल्ट. 220 0 गेट कैंसिल. अगर हम लोग इसका डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, दैट इज I1 इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग हाँ I1 निकालना है ना हम लोगों को, तो दैट्स व्हाट I1 P1 का वैल्यू रखेंगे. P1 का वैल्यू है 1100, सॉरी 1100. ओके, अगेन 0 गेट कैंसिल. 11 2 जा 11 1 जा बिकम्स 10. 10 डिवाइडेड बाई 2 1 जा तो 5 जा, मतलब I1 कितना है आपका, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. I1 कितना आया बच्चों, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. I2 निकालना है. I2 निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 220, 0 कैंसिल, 11 2 जा 11 3 जा, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.5. 3 divided by 2 is equal to 1.5. So I2 is equal to 1.5 ampere. I1 is equal to 5 ampere. I2 is equal to 1.5 ampere. Okay. Next. Now what we have to calculate? We have to calculate R1 and R2 also. For that we know that इडली वड़ा खाते रसम के साथ. याद आई ट्रिक, इडली वड़ा खाते रसम के साथ. देखो, इडली वड़ा खाते रसम के साथ, तो रसम खाते वड़ा और इडली के साथ. ठीक है. नेक्स्ट, बहुत सिंपल था ये. R1 निकालने के लिए I1 होगा, V को भी एज इट इज़ रहेगा. R2 निकालने के लिए V बाय I2 बन जाएगा. नेक्स्ट, हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है. सबसे पहले देखते हैं V1 इसके लिए देखते हैं. V तो दिया है 220, I1 कितना आया है, I1 आया है 5. When we do the multiplication, so we'll get the answer 5 4s are 20, 2 carries 5 4s are 20, मतलब 44. R1 कितना आया, 44 ओहम. I2 निकालने के लिए अगेन 220 डिवाइडेड बाय 1.5. when you shift this dot, so you'll get the one more 0 at upside. So when you do this, so you'll get the answer, that is 15 1s are 15, 15 1s are 15, carries 8, 15 4s are 26, 4s are remaining 15 6 are, that is 146 ohm. Do this calculation. Might be my calculations are wrong, I don't know, but I think so this answer is correct. So R2 is equal to what, 146 ohm. This comes for R1, this comes for R2. In below line, I1 is equal to 5 ampere, I2 is equal to 1.5 ampere. R1 is equal to 44 ohm, R2 is equal to 146 ohm. That's it. This is the answer. See कितना, मतलब गिवन डाटा लिखने से कितना हम लोगों को इजीली इसके सारे आंसर्स जो है वो मिल जाते हैं. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो कि रहेगा 4th वन न्यूमेरिकल. उसके लिए भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ. मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में ये सारे न्यूमेरिकल्स के ना ये छोड़ देता हूँ, मतलब एक इमेज छोड़ देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे क्या करना है. ठीक है. सी नाउ नेक्स्ट, a electric tungsten bulb is connected to home circuit. In a home, electricity supply runs at 220 volt. Potential difference is given, that is 220 volt. Okay, potential difference when switch on a current of 0.45 ampere, I is equal to 0.45 ampere, 45 ampere flow through the bulb, what must be the power? P is equal to question mark. Next, on the bulb, it kept on for the 10 hour. Time is equal to 10 hour. Remember this word, 10 hour. How many units of electricity will be consumed? Units you have to calculate. I'll tell you one more thing, that is for unit you have to must go for
means whatever the calculations are there, on the basis of that we'll calculate unit 2. Let it be, we'll move for the unit next one. Right now what we have to do, see this, given quantity is here, what we have to find out, in that potential difference we have to find out. So power is equal to V into A, sorry V into I, as we all of know power is equal to volt into current. पावर निकालना है, वोल्ट कितना दिया है 220, करंट कितना दिया है 0.45. डू द मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 99 वैट. पावर कितना आ जाएगा आपका 99 वैट. देयर मस्ट बी अ पावर ऑफ 99 वैट. नाउ ये कितने आवर कितने टाइम के लिए रखा है, तो ये टाइम रखा है 10 आवर्स के लिए. तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन. टोटल कंजम्पशन पावर कितना है 99 इंटू 10 इज इक्वल टू 990, विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये कितना हुआ, पावर इंटू टाइम में किया तो 990, ये हुआ वैट पर आवर. अब मुझे करना है इसको किलो वैट, सॉरी वैट पर आवर नहीं होगा, ये वैट आवर होगा, वैट इंटू आवर होगा, वैट आवर. देखो ना, पावर इंटू टाइम किया तो वैट इंटू आवर. ओके, नेक्स्ट मुझे कन्वर्ट करना है किलो वैट में. उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसको डिवाइड करना है 1000 से. तो 990 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, 0 से 0 कट गया, 2 0 है इसलिए 2 0 छोड़ के डॉट देंगे, 0.99 किलो वैट. ओके, किलो वैट आवर, किलो वैट आवर, दिस इज योर फाइनल आंसर. मतलब वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.99 किलो वैट आवर, जितना यूनिट वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करेगा. अब चलते थोड़ा सा सब्जेक्ट से दूर, जो कि है हमारे स्पेस के रिलेटेड. अब स्पेस के रिलेटेड क्या होता है बच्चों, देखो जैसे हमने वीडियो में पहले ही देखा है, स्पेस में हम लोग जब सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो सैटेलाइट को भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सैटेलाइट तो चलने से रहा, सैटेलाइट के अपने आप ही चलेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी लगती है. अच्छा, उसमें उतना बैटरी भी हम लोग नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम लोग उसके अंदर, सैटेलाइट के अंदर सोलार पावर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, जो कि मोल्ड होता है, सिलिकॉन मोल्ड होते हैं. और यही सोलार पैनल जब सन के इनफ्रंट डायरेक्शन में आते हैं, तो वहां से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेते हैं, और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कन्वर्ट करके जो है सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करते हैं, जिसके बेस अपने को क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सैटेलाइट को चलाने के लिए. ठीक है, I hope you enjoy all these numericals and you know very well. Tomorrow we are going to do next video lecture we are going to take, that is precautions, what precaution we can take while handling these things. Second important thing is कि if you have a doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Otherwise share, subscribe and like. Thank you.